ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम and welcome. Hari Om. So we are having our daily satsang guided and being guided by Sadhana Panchakam, a small work of Adi Shankaracharya Ji Maharaj. This is very important because it is said to be his last instruction before he departed. So the very first instruction is Vedo Nityam Adhiyatam. From that we have understood, read the Vedas daily and Taduditam Karm Swanushthiyatam, and do everything as per the instructions contained in the Vedas. The Vedas we have understood to be any text that gives us our spiritual goal and the instruction set. So to that extent, this Sadhana Panchakam is also our Veda. Now, at times we have come across certain instructions which are not clear how they are to be performed. So like yesterday, we saw about Sagun and Nirgun Bhakti, and we took the help of Gita in understanding how these are to be performed. So in case of Nirgun Bhakti, which is indicated by Atma Ichha in Sadhana Panchakam. So he has merely mentioned Atma Ichha Vyavasiyatam. But how that is to be done, that also has to be done as per the Shastras, as per the Vedas. And Gita is the sum and substance nichod of all the Upanishads. So if we are guided by what the Gita says, we are abiding by the instruction of Bhashyakar in this book. So we had referred to verses 13 and 14 of chapter 8 and verses 3 and 4 of chapter 12 for understanding what this Nirgun Bhakti is. And for Sagun Bhakti we had referred to verse 55 of chapter 11. And then we had Arjun representing all of us had immediately asked in chapter 12 first verse, which of the two is Uttam? And Bhagwan being very kind to us, he says, because Sagun Bhakti is easier to practice, therefore it is Uttam. However, he hastened to add that both will lead to the same goal, and that is you will achieve me. So this is what we had seen the last time we had the satsang. Now, ये जो आप वर्स कह रहे हैं भक्ति वाली, जी हाँ ये चैप्टर 1155 है. हाँ, 1155 for Sagun and 13 and 14 of chapter 8 for Nirgun and 3 and 4 also of chapter 12 for Nirgun. 3 and 4 of chapter 12 for Nirgun. और उसके अलावा आपने बताया 13 and 14 of chapter 8. And 13 and 14 of chapter 8. हाँ जी. जी. अच्छा, फिर प्रभु ये भाष्यकार कहते हैं हमें कि हमें संतों की कंपनी लेनी चाहिए और हमें विद्वानों के संरक्षण में जाना चाहिए. सद विद्वान अनुपसृप्यताम.
तो उसके लिए मेरा ख्याल जो सद्विद्वान का उन्होंने इंटरप्रिटेशन है, इज द परफेक्ट मास्टर, दैट इज़ अ गुरु. सो इसके लिए तो सबसे सुंदर मुझे वो लगता है कि गीता सारी है ही ये इसका आउटकम कि अपने अर्जुन ने कहा, चैप्टर 2 में ही कह दिया शायद, वर्स 7 में, अहम ते शिष्यः, आई एम योर डिसाइपल, त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, मे यू प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, आई एम अंडर योर शेल्टर. प्रपन्नम, और साधन पंचकम में उन्होंने कह दिया उपसृप्यताम. वो प्रपन्नम को उपसृप्यताम का इक्विवेलेंट में ले रहा हूँ. सो ये समझ में नहीं आया अरुण जी. ये आपने लास्ट में जो बोला ये मुझे समझ में नहीं आया. ये जो यहाँ पे लिखा है सद्विद्वान अनुसृप्यताम. अनुसृप्यताम इज टेकिंग शेल्टर एट द फीट ऑफ द मास्टर. जी. तो वहाँ पे वर्स 7 में अर्जुन ने कहा है, जी जी, त्वाम प्रपन्नम. अब समझ गया मैं. हाँ, प्रपन्नम इज द वर्ड, आई एम अंडर योर शेल्टर. तो प्रपन्नम और अनुपसृप्यताम, these two words appear to indicate the same thing, that is under the shelter of a guru. So I am saying that this is Arjun went to a guru and took shelter. The outcome was Gita. So Bhashyakar here in this book also is saying that keeping the company of saints and taking shelter will also lead to the unfoldment of Gita in your life. So, acha, then this company of the wise, what does it lead to? तो उसका एक बड़ा सुंदर वर्स है इन भज गोविंदम. भज गोविंदम में 9th वर्स है, which says सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति. सो सत्संग से निस्संगत्व होता है, यू डेवलप डिटैचमेंट, और निस्संगत से निर्मोहत्वम है. From detachment you can get over moh. And nirmohatve nischala tattvam. Once you have got over your moh, then you can reach the immutable reality. तत्व ज्ञान हो सकता है. निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति. Having reached the तत्व ज्ञान, you can reach जीवन मुक्ति. So by mere association of the wise, सत्संग की इम्पोर्टेंस. ये उसका ऑपोजिट हो गया ना, जो जैसे जो फॉल ऑफ मैन है. हाँ, वो जो, जी हाँ, थोड़ा अटैच हुए मोह से. बिल्कुल. फिर वो भगवान बताते हैं कि कैसे आप गिरते हो. जी हाँ. तो इसमें ये हुआ कि आप सत्संग से अटैच हुए, सच. हाँ, उससे आप ऊपर चलते चले गए. जी बिल्कुल. ये लेडर ऑफ राइज है, वो लेडर ऑफ फॉल है तो लेडर ऑफ राइज है. जी जी जी, बिल्कुल. अच्छा, फिर यही चीज़ जो है गीता में वर्सेस 3, 4 और 5 में है, इन चैप्टर 15, जहाँ वो कहते हैं कि भाई आप जो है अपना निस्संगता से उसका शस्त्र बना के अपना सारे इसको बंधनों को काटो. तो ही इज़ गॉन इनटू एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन. सो he talked about tree, मायाजाल, inverted tree. तो मायाजाल में आप फंसे हुए हैं, तो कैसे निकलना है? तो detachment is the sharpened axe which cuts across all द्वंद्व, सुख दुख, मोह मान, and you can get established in the Lord with the surrender of all what you do with worship.
सो ये जो वर्शिप से सरेंडर करना है वो उसका समझने का ज़रूरी है कि भाई आप हाउ डू यू ऑफर एवरीथिंग एज अ वर्शिप टू द लॉर्ड। अरुण जी, मुझे बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है कि आपके साथ शेयर करूं। हाँ जी, बोलिए। कि जैसे आज सुबह को मैं उठा ना, तो मुझे इस बॉम्बे आना था, तो सुबह सुबह 5 बजे ही मैसेज आया था इनके ऑपरेटिंग पार्टनर का कि भाई आप मेरे से चर्चा करें। अच्छा। जब तक मैंने देखा वो फ्लाइट में, मैंने उनको मैसेज किया तो वो बोले मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, जब आप लैंड करेंगे, जब मैं लैंड करूंगा मुंबई तो आप मेरे से बात करना। फिर मैंने देखा रात को एक दूसरे मैकेंसी के पार्टनर ने, रिटायर्ड मैकेंसी का पार्टनर है, उसका मैसेज था कि भाई आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है ये अच्छी है, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैंने उसको मैसेज भेजा भाई अगर आप उठ गए हो, क्योंकि मेरी फ्लाइट 8:30 बजे की थी, तो 8:30 बजे ही उसका मैसेज आया कि आई हैव जस्ट गॉट अप। तो मैंने कहा कि मैं लैंड करके आपसे बात करता हूँ। तो प्रभु की ऐसी कृपा रही कि ये बातचीत लगातार चलती रही, और वो खुद मुझे बुला करके, ये मैकेंसी वाले, कि अनिल इसको ऐसे सोचो, तुम इन चीजों को रिवाइज करो। तो मतलब बड़े वैल्यूएबल उन्होंने इनपुट्स दिए, जो ये मैकेंसी के पार्टनर है। जी हाँ। जो ये केडारा के ऑपरेटिंग पार्टनर जिन्होंने ये मीटिंग कराई थी, उन्होंने फिर मेरे को ब्रीफ किया, भाई आपने ये किया है, मैं चाहता हूँ आप ये करो। तो मैं देख रहा था कि कैसे प्रभु जो है, मतलब आ करके हेल्प किए जा रहे हैं। फिर मैंने प्राची से बात की, उसने कुछ बड़ी अच्छी बातें बताई, फिर ब्रदर से बात की, सुनील भैया से। तो सब जगह से हर कोई नए पर्सपेक्टिव्स दे रहा था। तो मैं वही कहूंगा कि प्रभु अलग अलग तरीके से वो बता रहे थे, और जब हम बैठे भी, तो मतलब आज से 22 साल पहले मैं गया था ISB में, जहां मैंने अपनी फैमिली की केस स्टडी बताई थी। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि प्रभु मेरी अब मार्ग बदल रहे हैं। मैंने उसके बाद सरकार छोड़ी थी और ये काम शुरू किया था। और आज भी वो केदारा का पार्टनर भी मुझे कह रहा था, और मुझे उसके कहने के पहले ही मैं शालू से बात कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि फिर प्रभु मुझे एक नई दुनिया दिखा रहे हैं। तो कमरे में 40 लोग थे, सब हार्वर्ड, IIT, IIM वाले, स्टैनफोर्ड वाले, और इतने ब्राइट लोग एक साथ एक कमरे में इतना इन्वॉल्व होकर के जो बातचीत कर रहे थे। मैंने एक साथ इतने ब्राइट लोग एक कमरे में नहीं देखे। सरकार में रहा, सिविल सर्विसेज में बहुत ब्राइट लोग आते हैं। फिर मुझे लगा कितना अच्छा ये प्रभु आज। तो और सुबह से, या जो ये बार बार अभी तक जो मैंने समझा है, और मैंने इस साधना पंचकम को उतारने की जो मैं मतलब प्रभु कृपा से ऐसे विचार आ रहे हैं, आपके तरीके से ही सोचने और बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु की याद बनी रहे, समर्पण रहे, सरेंडर करें उसको। प्रभु से प्रेम संसार से प्रेम है। अगर हम संसार में सबसे प्रेम करने लगे, क्योंकि सब में वही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि अच्छा हो रहा है, जो एक बुद्धि मेरी कह रही है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु का खेल चल रहा है, उसको तो प्रभु से प्रेम करना है। तो उसने जो भी संसार में बनाया है, चांद, तारे, लोग, जानवर, इस तरीके के विचार जो है, मुझे इसका मतलब समझ में आ रहा है कि प्रभु से प्यार करें, डिवोशन करें, और फिर पूरी तल्लीनता से जो कर्म कर रहे हैं उसको करें। जी हाँ, उसको अर्पित कर दें। और मैं देख रहा था कि मेरा दिमाग जब, या मेरा मन इसमें चल रहा था कि इससे क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है,
फ्यूचर में मैं जा रहा था तो उत्तेजना हो रही थी। वो उत्तेजना जो है शांति वाली नहीं थी। मतलब फ्यूचर का सोच करके कि ऐसा रिजल्ट हो जाए, वो जैसे ही मांग शुरू हो रही है कि ऐसा हो, अगर ये विचार आ रहा है तो उत्तेजना सी हो रही है जो सुखद नहीं है, जो शांतिवान नहीं है। तो जो आपने कहा था कि प्रभु जो है द्वेष में वास नहीं करते हैं, जी हाँ भाई वो पल है ना, इस पल में जो हो रहा है ठीक है। तो जो ये उत्तेजना हुई, मैंने देखा वो हो रही है, तो फिर मैंने प्रभु को याद किया कि भाई प्रभु मुझे आप में आपकी याद बनी रहे, मैं अपना धर्म करूं, ऐसी कृपा करूं। तो फिर वो उत्तेजना शांत हो रही है। अति सुंदर। मैं जो आप कह रहे हैं उसी, आप प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। मैं थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, और जो मैंने आचार्यों से सुना है और समझा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जैसे एक माँ है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, पिता भी करते हैं, वो ये मन में अगर धारणा कर लें कि हम वर्शिप कर रहे हैं, तो क्या चेंज आएगा उनके पालन पोषण में। पहली बात, कोई बिजनेस कर रहा है, वो ये सोचे मैं वर्शिप कर रहा हूँ, तो उसके बिजनेस करने में क्या फ़र्क आएगा। कोई कॉर्पोरेट लाइफ लीड कर रहा है और वो इस भाव से लीड करे, मैं वर्शिप करने जा रहा हूँ और वर्शिप कर रहा हूँ, उसके एटीट्यूड में क्या फ़र्क आएगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, उसका आपका क्या लगता है? क्योंकि आप तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? अरुण जी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चेंज होगा। और वही जब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मुझे सत्संग का बहुत फायदा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि जो ये मन भूल जा रहा था, तो जैसे ही मैं इसको सेवा के रूप में देख रहा हूँ, वो स्वार्थ निकाल रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि जैसे जो मैं सबकी बात सुन पाया आज, मुझे ऐसा लगता है कि जो अलग अलग लोग मुझे इनपुट्स दे रहे हैं, जैसे कल आपने और हरजीत ने दिया, तो आपका तजुर्बा अलग है, मेरा तजुर्बा अलग है, आप अपने तजुर्बे से कह रहे हैं। जी हाँ। तो मैं देख रहा था कि पार्ट ऑफ मी थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, तो हमारी लिसनिंग कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने अपने आप को लिमिट कर लिया ना। मन से कि ये मेरे शुभ चिंतक है या प्रभु बोल रहा है इस रूप से, तो उसको खुले मन से सुनो। हाँ, करो जो मर्जी, वो सेपरेट इशू है। हाँ, तो जब वर्शिप हो जा रही है ना, और आप जिससे बात कर रहे हो, तो आप अपने अहंकार, अपने एक्सपीरियंस को किनारे करके, तो जैसे जो आपने माँ बाप का एग्जाम्पल दिया कि मैं अपने बच्चों को एज अ फादर, अगर इसको मैं वर्शिप के रूप में देखूं, तो फिर मुझे डर लगता है कि बच्चों का इसके ऊपर खराब प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा। किसी ने मेरे को कुछ कहा है और मैं उस डर से ऑपरेट कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि जब तक मैं डर से ऑपरेट करता हूँ, तो बच्चों से कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती है, वो कर्म अच्छा नहीं होता है, क्योंकि भय आ गया, फिर अगेन प्रभु नहीं रहे। और जब आप शांत मुख से कर रहे हो, भाई फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं, ये मेरी पूजा है, मैं सच्चे दिल से कर रहा हूँ, तो विवेक कह रहा है। तो जो आप शास्त्र कह रहे हैं, मुझे लग रहा है पिछले 12 दिनों में, 15 दिनों में मैं इसको अपने कार्य को सेवा के रूप में देख करके कर रहा हूं, तो आई एम एबल टू लिसन, अंडरस्टैंड एंड सी हाउ कहां से प्रभु सपोर्ट कर रहे हैं। और जब मेरा निज स्वार्थ जो कहां से अंदर घुसा हुआ है वो काम करने लगता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो वो व्याकुलता होने लगती है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से अगर बच्चे को हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो व्याकुलता की
वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है। काम अच्छा होगा, एब्सोल्युटली। तो उसमें क्या है, तौर पे अच्छा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस भाव में द्वेष तो रहेगा ही नहीं। सबसे पहले अगर आप हर कार्य में वर्शिप के भाव से कर रहे हैं तो द्वेष की गुंजाइश कहाँ है? चिंता और भय की भी नहीं है कोई गुंजाइश। चिंता और भय की भी नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई गुंजाइश नहीं है चिंता और भय की। तो आप में अभय आ गया, आप मुक्त हो गए, और आप जो है द्वेष और द्वंद्वों से घिरे नहीं रहे। तो उसके बाद आप में समता आई गई। और समता में स्वामी मित्रानंदा जी हैं, वो कोट कर रहे थे, उनको मैं कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि स्वामी तपोवन जी महाराज ने एक अपने डिसाइपल को चिट्ठी लिखी कि लीडिंग अ बैलेंस्ड लाइफ इज़ मोक्ष। तो ये बिल्कुल गीता से रेजोनेट करता है। समत्वम योग उच्यते एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत जगह ये गीता में आया है। तो आपने जो कहा लक्षण, चिंता रहित, भय रहित, द्वेष रहित, तो उसके बाद समता इज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। आप कैसे आप इम्बैलेंस्ड होंगे? वही रहीम का दोहा इतना सुंदर है, या कबीर का जो दोहा है कि प्रेम गली, हाँ, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना। हाँ, कबीर। प्रेम गली अति साकरी तामे दो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और रहीम का इस तरीके से दोहा है कि बहुत ही सुंदर दोहा है, मैं भूल रहा हूँ। उसमें ये है, भाव उसका ये है कि रहीम अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। अगर सच कहूंगा तो संसार गया, और परमात्मा को पकड़ूंगा तो संसार चला जाएगा। हाँ, सच से संसार गया ना। परमात्मा और सच तो सेम है। अब रहीम मुश्किल पड़ी, मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो काम। हाँ, बिल्कुल। साचे तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। हाँ, झूठ पे तो राम मिलेंगे नहीं, सच बोलेंगे संसार जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो अब रहीम मुश्किल पड़ी, तो जो ये कबीर कह रहे हैं, रहीम कह रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सब रियलाइज सोल है और बड़ी सरल बात कर रहे हैं। प्रभु आ गए तो फिर संसार क्या, हमने अपना अहंकार पाल रखा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मेरे साथ है, ये मेरे खिलाफ है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये स्वार्थी है, ये समझ नहीं रहा है कि बैफ के हित में क्या है। वो सब मेरा स्वार्थ है कि मैं चाहता हूं ऐसा हो। जैसे ही हम ये देख रहे हैं कि भाई ये सब प्रभु का कार्य है, जैसे आप कह रहे हैं, सब साथी हैं। जी हाँ। और अगर कोई साथी नहीं है तो वो प्रभु पूछेंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। हमें जो अपनी विवेक शक्ति लग, हम उस हिसाब से करें। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने आपको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इससे आप बिल्कुल अवेयर रहें। एंड सिंस यू आर इज इंस्ट्रूमेंट, वेयर इज द नीड फॉर फियर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो द्वेष गया, प्रभु आए तो द्वेष रह नहीं सकता है, और द्वेष रहा तो प्रभु रहेंगे नहीं, अंधेरा और प्रकाश वाला हो गया। मुझे तो ये बात इतनी सुंदर लगी कि भाई द्वेष जो है, आप द्वेष से काम करोगे तो प्रभु रहेंगे ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रभु से राग हो गया। हाँ, हेलो। जी जी जी। हाँ, नहीं, आप प्रभु से राग हो गया तो फिर कहाँ ये भय और कहाँ चिंता और कहाँ उलझन? क्यों व्याकुलता हो कि ऐसा ही हो? वो करेंगे जैसा करना है। सामने दिख रहा है कि आज का अगर मैं देखूं तो कैसे कैसे कितने लोगों ने सहयोग दिया है, और सुनने वाले जो 40 लोगों से मुलाकात हुई वही प्रभु कृपा है। जी हाँ, जी हाँ।
उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये तो समाज सेवा का काम हो जाएगा। हाँ, नहीं आपका, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। उन्होंने एक तीसरी बात कही अरुण जी, उन्होंने तीसरी बात कही, वो दोनों चीज तो उन्होंने स्वीकार की कि भाई कैपेबिलिटी असेसमेंट किया जाए, विन विन सोचा जाए, और आप हमारे साथ उनमें काम करो जहां हम ऑलरेडी एंगेज कर चुके हैं, तो हम आपको वहां पे पोजीशन करें और परिवार की हेल्प करो, क्योंकि परिवार का हमारे ऊपर ट्रस्ट है, हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट है, और वो ड्यू डिलिजेंस वाला भी उन्होंने बोला। एक तीसरी चीज उन्होंने कही कि मान लीजिए परिवार, हम कोई नई डील कर रहे हैं और परिवार सहमत नहीं है कि वो आपको एक्सेप्ट करे, तो बोले हम जो है आप हमारे साथ मीटिंग में बैठो जब हम उनके साथ बात कर रहे हैं, और अपने एक्सपीरियंस से हमें बताओ। उन्होंने आज एक और बात करी और बोला इसके बारे में भी आप मदद करिए कि ये दोनों तो हम लोग विचार कर रहे हैं आपस में, गिव अस 2-3 वीक्स, लेकिन इसके बारे में भी विचार करो। वेरी नाइस। सो दैट यू आर बेसिकली काइंड ऑफ अ पार्टनर विद देम इन टेकिंग अ डिसीजन। आई डोंट, उनका विचार ये था कि भाई हम लोग जो है अपने उससे ग्रसित हो जाते हैं, और आप जो है चूंकि ह्यूमन इमोशंस को समझते हो तो आप हमें गाइड कर सकते हो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कहा भाई मैंने ऐसे सोचा ही नहीं है, गिव मी सम टाइम, हाँ जी, लेट मी बिल्कुल प्रोसेस इट। जी हाँ, बिल्कुल। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट रोल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा करा आपने, बहुत सुंदर। तो अभी यहाँ रोकते हैं। सॉरी मैं शेयरिंग में चला नहीं, ये तो बहुत सुंदर है जी। ये मैं कह रहा हूँ, मैं तो थ्योरी बात कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये ऑडियो जो है इज़ गोइंग टू द मासेस, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, क्योंकि उससे जो है अब आपका लाइव एक्सपीरियंस है, उसको जान के लोग समझ आते हैं कि जो गीता में लिखा है, प्रभु जो कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकता है और वो करना चाहिए। लोग आधे लोग तो ये इस तरह से बैठ जाते हैं, मैंने सुना भी है, ये तो प्रैक्टिकल बातें नहीं है, जबकि एक्चुअली ये प्रैक्टिकल बातें हैं सारी। बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल। चलिए ठीक है जी, आई विल से द कंक्लूडिंग प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम अनिल जी, थैंक। हाँ जी, हरि ओम। कल बच्चों ने शाम को प्ले की कोई